there. So once again, welcome back. And in today's video, we're gonna see the approaches of psychology. But before that, let's see the recap of what we have studied earlier. So at the beginning of this chapter, and before I start, I would like to tell this PDF is from the book An Introduction to Psychology by Morgan and King. Let's start. At the beginning of this chapter, we have given a definition of psychology, which said in part that psychology is the science of human and animal behavior. Okay, in the previous one, I have told you that what is the psychology? It is the science of human and animal behavior. We then went on to describe how the scope of behavior could be broadened, right, to include mental events. This definition itself represents a viewpoint, right, कि कैसे ये definition represent करता है अलग अलग viewpoint. So here we studied कि कैसे other psychologists ने choose किया to define psychology as the science which studies mind and states of consciousness. And a few psychologists might drop the term science from the definition. कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि साइकोलॉजी एक साइंस है जो स्टडी करता है माइंड एंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड कुछ ने तो ये भी सोचा कि वी वुड ड्रॉप द टर्म साइंस. दस एंड वी ऑल्सो सॉ कि कैसे सबके अलग अलग आइडियाज़ एंड देयर डेफिनेशंस कॉन्ट्राडिक्ट किए. ओके, and thus fundamental differences in viewpoint show up in very definition of psychology and in ideas about what psychology should study and how. Such differences and the argument they spark can make a psychology a lively field indeed. Okay, so in the history of psychology, strong different opinion about what psychology should study and how it should do it were represented by schools of psychology. So here what it's telling is, now यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ये बता रहा है कि कैसे स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस होने के वजह से डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आ गए, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल एक इन्फ्लुएंस करते थे टीचर्स को कि आप ये बताइए कि साइकोलॉजी ये है, एंड अलग लोग ये बताते थे. So we will see the schools of psychology where there are two aspects. ठीक है, यहाँ पे दो schools की बात की गई है, like दो phases में. The first phase is early schools of psychology and the modern school of psychology, right? So यहाँ पे यही कह रहा है. So यहाँ पे कह रहा है, before we took the current perspectives of psychologists, some historical background will help these points of view into focus. So let's start with the early schools of psychology. Now here यहाँ पे ये बताया जा रहा है, formal ideas about behavior and mind in Western culture begin with the classical Greek philosophers and have continued to this day as a part of the fabric of philosophy. जो psychology आई है ना, वो philosophy से आई है, right? जो formal ideas होते थे like behavior, mind, वो वेस्टर्न कल्चर से बिगिन हुआ विद द क्लासिकल ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने इन सब पे आइडियाज़ लाए, स्टडीज़ की. ये एक फ़िलोसफी का पार्ट है जो बाद में जाके एक साइकोलॉजी, एक डिफरेंट स्टडी बनी. साइकोलॉजी एज अ सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी split away from philosophy a little over 100 years ago. Okay, the success of the experimental method in the physical sciences encouraged some philosophers to think that mind and behavior could be studied with scientific methods. जो philosophers थे वो खाली theoretical part पे believe करते थे, but जब उन्होंने एक successes देखे कि experimental method पे use हो सकता है physical sciences में, जो कुछ philosophers को encourage किया to think कि mind and behavior को साइंटिफिकली यानी साइंटिफिक मेथड से स्टडी भी की जा सकती है. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इन 1879 जो पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी था
वो इस्टेब्लिश किया गया था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीपजिग बाय द जर्मन फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट विलियम वुडेंट। रिमेंबर दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लीपजिग में बाय द जर्मन फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट। एज आई अर्लियर मेंशन कि साइकोलॉजी जो एक एरिया ऑफ फील्ड आई है वो फिलोसफी से ही आई है। ओके, और यहाँ पे किसने इस्टेब्लिश किया था? विलियम वुंड ने इस्टेब्लिश किया था। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द डेट 1832 to 1920. Alright. The first formal psychological laboratory in the United States was set up at Johns Hopkins University in 1883. जो पहला फॉर्मल साइकोलॉजी लेबोरेटरी थी वो इस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड स्टेट्स में एट कहाँ पे? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी 1883 में। एंड विदिन अ फ्यू ईयर्स द मोस्ट मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैड साइकोलॉजी लेबोरेटरीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सो ही इज़ द पर्सन जिन्होंने पहला साइकोलॉजिकल फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट थे विलियम वुंड ने पहली साइकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश की इन जर्मन। ही वॉज द पर्सन। द नेक्स्ट इज, हालांकि साइकोलॉजी निकली थी हमारे फिलॉसफी से, बट कुछ उसके पार्ट अभी भी थे। ऑल्दो स्टिल फिलोसफिकल इन पार्ट, द स्पिरिट ऑफ साइकोलॉजी एज ए न्यू सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी हुई। ठीक है, एज आई टोल्ड, एज इट डेवलप इन द लास्ट ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ये कब डेवलप हुआ? लास्ट ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी। इज कैप्चर्ड इन विलियम जेम्स। विलियम जेम्स की एक बहुत फेमस टेक्स्ट बुक है ऑफ 1890, मतलब उन्होंने ये बुक 1890 में लिखी थी। सो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जेम्स, वुडेंट एंड दी अदर साइकोलॉजिस्ट जो थे ऑफ दैट टाइम, उन्होंने ये सोचा कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी क्या करता है? कि किसको स्टडी करता है? माइंड को स्टडी करता है। इट डिड एक्सपेरिमेंट्स टू फाइंड, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टू फाइंड द लॉज। उन्होंने लॉ निकाला कि रिलेटिंग इवेंट्स, जो फिजिकल वर्ल्ड में जो इवेंट्स हो रहे हैं, टू अ पर्सनस मेंटल एक्सपीरियंस ऑफ दोज इवेंट्स। जो मेंटल एक पर्सन जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इवेंट्स को, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये स्टडी किया कि अटेंशन और द प्रोसेस बाय विच वी बिकम अवेयर ऑफ सम एक्सटर्नल इवेंट्स एंड नॉट ऑफ अदर्स। ये हमारे खुद के इवेंट्स होते हैं, ना कि दूसरों के। दे डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इन द एरियाज ऑफ इमेजरी, मेमोरी, थिंकिंग एंड इमोशन। एंड उन्होंने इन सब एरियाज पे क्या की? स्टडी की, एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड इसी से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स आगे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ आई होप क्लियर कि यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट, नॉट साइंटिस्ट, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जैसे जेम्स, विलियम वुडेंट। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज, in the first decade of the 20th century, psychologists came to hold quite different views about the nature of mind and the best ways to study it. अब यहाँ तक तो क्या था कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दे वर ट्रायल मेथड था, ठीक है। तो बट क्या हुआ, फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिस्ट कुछ यूनिक एंड डिफरेंट व्यूज़ के साथ आए कि हमारे माइंड का नेचर कैसा है एंड द बेस्ट वेज टू स्टडी इट, एंड क्या सही तरीका है जिससे हम इसे स्टडी कर सकते हैं। सो हेयर इट गोज़। अब यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी और कह सकते हैं यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे एंड थिंकिंग हो रही थी। अबाउट द सेम टाइम एक फंडामेंटल क्वेश्चन बहुत लोगों ने रेज़ किया कि व्हाट शुड बी स्टडीड इन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए। शुड साइकोलॉजी बी द स्टडी ऑफ माइंड, शुड इट बी द बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, और बोथ माइंड एंड बिहेवियर, क्या दोनों को इंक्लूड करें, या फिर सिर्फ माइंड पढ़ें, या फिर सिर्फ बिहेवियर पढ़ें, या फिर दोनों को इंक्लूड करें। डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम, उन्होंने ये कहा, जो डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऑफ द टाइम हेल्ड क्वाइट डिफरेंट व्यूज़। उनके कुछ डिफरेंट व्यूज़ थे किस पे?
on the nature of mind and the proper subject matter for psychology, कि साइकोलॉजी में क्या होना चाहिए, कि क्या पढ़ना चाहिए उसमें, कि सब्जेक्ट मैटर होगा क्या इसका. सो यहाँ पे स्कूल्स ऑफ थॉट फॉर्म्ड अराउंड दीज लीडर्स. यहीं से स्कूल्स की शुरुआत हुई, यहीं से स्कूल्स की शुरुआत हुई अराउंड दीज लीडर्स एज देयर स्टूडेंट अडॉप्टेड देयर आइडियाज़. यहाँ पे पर्टिकुलर लीडर्स के आइडियाज़ को अडॉप्ट किया गया और यहीं से स्कूल्स फॉर्म हुए. लेट्स सी व्हाट आर दोज स्कूल्स, राइट. और बेसिकली स्कूल्स यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है. दीज स्कूल्स of thought are known as the schools of psychology. They set the direction for much of the research on mind behavior in early years of this century. The very first is structuralism, right? Structuralism. So what is structuralism? So this is the early school of psychology grouped around the ideas of William Wundt in Germany. ये बहुत ही अर्ली है, बहुत ही पहला जो कह सकते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जो ग्रुप हुआ अराउंड द किसके आइडियाज़ पे, बाय विलियम वुडेंट. ठीक है. एंड ये इस्टेब्लिश किए गए कर्नल यूनिवर्सिटी में. ये जो विलियम वुडेंट का आइडिया था एंड इट वाज इस्टेब्लिश्ड एट कर्नल यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वन ऑफ द वुडेंट स्टूडेंट, इसने इस्टेब्लिश किया, वन ऑफ द वुडेंट स्टूडेंट, मतलब उनके ही एक स्टूडेंट ने इस्टेब्लिश किया, जिनका नाम है एडवर्ड पी टिटेंशनर. इन्होंने इस्टेब्लिश किया. सो लेट्स सी. सो स्ट्रक्चरलिज्म का बेसिकली गोल क्या है, वी गोना सी दैट. द गोल ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट वाज टू फाइंड द यूनिट्स एलिमेंट्स व्हिच मेक अप द माइंड. यहाँ पे बेसिकली जो वुडेन का आइडिया था कि माइंड का नेचर कैसा होता है. ओके. सो उसी के बेसिस पे द गोल ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट was to find the units. यहाँ पे ये फाइंड करना, what is the goal, यहाँ पे ये उनका था कि what are the units elements which make up the mind. माइंड कैसे बनता है, right? They thought that as in chemistry, उन्होंने यहाँ पे केमिस्ट्री लॉजिक लिया कि केमिस्ट्री का जो पहला स्टेप होता है, the first step in the study of mind should be description of the basic or elementary units of sensation, image, emotion which compose it. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि they thought that is in chemistry का जैसे पहला एक स्टेप होता है ना कि study of mind, माइंड को पढ़ने के लिए हम लोग को डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है कि बेसिक क्या है, एलिमेंट्री क्या है, सेंसेशन के क्या क्या यूनिट्स हैं. लाइक वी हैव सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स. सेम वे इमेज, हम किसी इमेज को देखते हैं. इमोशन, हम लोग क्या फील करते हैं. यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सच एज रेड, कोल्ड, स्वीट, फ्रेगनेंट, राइट. एग्जाम्पल में विच प्रोवाइड दे सेड बेसिक फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्सपीरियंसेस. यहाँ पे यही एग्जाम्पल है, जैसे रेड कलर देखते हैं, कोल्ड फील करते हैं, स्वीट हमारे टेस्ट बड्स बताते हैं, फ्रेगनेंट वी स्मेल इट, हमारे सेंसेस जो वर्क करते हैं वो ब्रेन तक कैसे जाते हैं. राइट. सो यहाँ पे ये देखा जा रहा है, द मेन मेथड यूज्ड बाय द स्ट्रक्चरलिस्ट टू डिस्कवर दिस एलिमेंट्री यूनिट्स ऑफ माइंड वाज इंट्रोस्पेक्शन. वेरी वेरी गुड थिंग. द मेन मेथड जो यहाँ पे था वो एलिमेंट यूनिट्स का था. क्या? द मेन मेथड used by the structuralist to discover these elementary units of mind was introspection. अब introspection क्या होता है? So what is the meaning of introspection? का मतलब होता है कि अगर आप कोई deeply think करो अपने own ideas को, अपने own thoughts को, that is the introspection. आप ज़्यादा फोकस कहाँ कर रहे हो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. डीप थिंकिंग करना, that is introspection. यहाँ पे सब्जेक्ट्स को ऐसा ट्रेन किया जाता था टू रिपोर्ट एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल व्हाट दे एक्सपीरियंस इन कनेक्शन विद अ सर्टेन स्टिमुलस. एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो, SR फैक्टर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स फैक्टर.
तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स को ऐसे ट्रेन किया जाता था टू रिपोर्ट एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल कि वो क्या एक्सपीरियंस करते थे जब वो किसी स्टिमुलस के कनेक्शन में आते थे, disregarding the meaning they had come to associate with the stimulus. Alright, disregarding the meanings they had to come to associate कि क्या मीनिंग से वो स्टिमुलस आ रहा है. The subject might, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, be presented with the colored light, a tone or a order and asked to describe it as minutely as possible. Minutely, okay. तो यहाँ पे सब्जेक्ट को कुछ स्टिमुलसेस दिए गए. दीज आर लाइक जो हमारे सेंस में आते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से हम उस स्टिमुलस को कैप्चर करते हैं, दैट इज द स्टिमुलस. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया. तो यहाँ पे वही कह रहा है कि सब्जेक्ट माइट यहाँ पे बी प्रेजेंटेड विद द कलर्ड लाइट. उन्हें एक कलर्ड लाइट दी गई, अ टोन एक ऑर्डर, एक खुशबू, एक टोन, और डिस्क्राइब किया इतना एज मिनटली एज पॉसिबल. आपको तुरंत ही रिप्लाई करना है. ऑलराइट, दिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन हैव गिवन अस अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंसेशंस पीपल हैव. और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता कि 5 ऑर्गन सेंस ऑर्गन के बारे में यहीं से पता चला. व्हाट आर दोज 5 सेंस ऑर्गन्स, कैसे वर्क करते हैं. This experiment using introspection have given us a great deal of information about the kinds of sensation people have. But other psychologists of the time, यहाँ पे देखो कुछ नए आइडियाज़ आते हैं तो साथ में क्रिटिसिज्म भी आता है. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बट कुछ अदर साइंटिस्ट थे, राइट, बट अदर साइकोलॉजिस्ट थे, बार बार साइंटिस्ट कह रही हूँ, बट अदर साइकोलॉजिस्ट थे ऑफ दैट टाइम. उन्होंने चैलेंज किया इस आइडियाज़ को दैट द माइंड कुड बी अंडरस्टूड बाय फाइंडिंग इट्स एलिमेंट एंड द रूल्स फॉर कंबाइनिंग दैम. कि ज़रूरी नहीं कि आप सेंसेस के थ्रू नेचर ऑफ माइंड पता करें. साइकोलॉजिस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने चैलेंज किया कि आइडिया ऑफ दैट माइंड कुड बी अंडरस्टूड बाय फाइंडिंग इट्स एलिमेंट्स. आप उसके एलिमेंट्स निकालो कि माइंड बनता कैसे है. रूल्स फॉर कंबाइनिंग दैम, कि वो कैसे बनता है. Still others turned away from describing the structure of the mind, study how they can be, कि mind कैसे function करता है. So this was the end of the very first school of psychology, that is structuralism. यहाँ पे एक history देना कि कहाँ से establish हुई पहली lab and study, then tell about कि क्या goals थे एंड कैसे उन्होंने बेसिक एलिमेंट्री जो केमिस्ट्री का जो पहला स्टेप होता है उससे उन्होंने सेंसेशन के थ्रू नेचर ऑफ द माइंड को स्टडी किया. ऑलराइट, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट में किया क्या एंड उसका क्या आउटकम निकला. द नेक्स्ट इज जीस्टाल्ट साइकोलॉजी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी, सो लेट्स हैव अ लुक. सो जीस्टाल्ट साइकोलॉजी जो थी, दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी was founded in Germany. जर्मनी में इस स्कूल या फिर इस थॉट को फाइंड किया गया था अबाउट 1912. 1912 में इस स्कूल को फाउंड किया गया था बाय 3 persons. ओके, द फर्स्ट इज मैक्स वर्थिमर एंड इनके कुछ कलीग्स थे जो कि कर्ट कॉफका, वॉल्फगैंग कोहलर. ऑलराइट, तो ये बेसिक इंट्रो देना पहले कि दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंड हुआ था जर्मनी में इस डेट को, राइट, इस ईयर को बाय किसने किया था, मैक्स वर्थिमर, हिज कलीग्स कर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोहलर. ये कुछ पायनियर साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने ये सोचा नहीं, उन्होंने ये फील किया कि स्ट्रक्चरलिस्ट वर गोइंग रॉन्ग इन थिंकिंग ऑफ द माइंड एज बीइंग मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज किया और कहा कि ये गलत है. राइट, दिस पायनियर साइकोलॉजिस्ट फेल्ट दैट स्ट्रक्चरलिस्ट वर रॉन्ग इन थिंकिंग ऑफ द माइंड एज बीइंग मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, कि ये बहुत गलत सोचा है, इन्होंने गलत बताया है कि जो माइंड है वो एलिमेंट से बना है. उन्होंने ये कहा कि दे मेंटेन्ड दैट द माइंड इज़ नॉट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल एलिमेंट्स. ये सिर्फ हमारे सेंसेस को महसूस करके हमारा माइंड बना है, दैट इज़ नॉट ट्रू.
उन्होंने ये कहा, आई टेल यू लेटर, बट बिफोर वी नो टू मीनिंग कि जीस्टाल्ट का मतलब होता क्या है। द जर्मन वर्ड है जीस्टाल्ट। द जर्मन वर्ड जीस्टाल्ट मीन्स फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन, कुछ बनना या फिर किसी फिगर्स का कॉन्फ़िगरेशन होना, ढेर सारे फिगर्स एक साथ दिखना। एंड द जीस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट मेंटेन दैट द माइंड शुड बी थॉट ऑफ एज रिजल्टिंग, जो माइंड हमारा रिजल्ट बताता है, ठीक है, फ्रॉम द होल पैटर्न ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज से ये एक रिजल्ट दिखाता है, ये कोई पैटर्न बन रहा है उसका एक रिजल्ट दिखाता है। एंड द रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन दिस पैटर्न, और इसी में एक रिलेशनशिप और एक ऑर्गेनाइजेशन भी दिखती है पैटर्न में। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सो आई एम टेलिंग यू दिस एग्जाम्पल कि आपको जो सिर्फ डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, दीज आर नॉट जस्ट डॉट्स, आपका माइंड एक पर्सपेक्टिव ले रहा है कि ये एक स्क्वायर है और ये एक ट्रायंगल है और ये एक लाइन है। सो दैट इज़ व्हाट द माइंड इज़। यहाँ पे जीस्टाल्ट साइकोलॉजी को यही बताया गया है, दैट जीस्टाल्ट साइकोलॉजी इज़ द फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपको फॉर्म और एक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न ऑफ डॉट्स दैट आर फॉर्मिंग द स्क्वायर, पैटर्न ऑफ डॉट्स दैट आर फॉर्मिंग द ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल है कि वी रिकग्नाइज अ ट्यून व्हेन इट इज ट्रांसपोज टू अनदर की, द एलिमेंट्स हैव चेंज्ड बट द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप हैज स्टेड द सेम। और टू टेक अनदर एग्जाम्पल, व्हेन यू लुक एट द डॉट्स, जब आप डॉट्स पे देखोगे, योर मेंटल एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट द डॉट्स, ये सिर्फ डॉट्स या फिर एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि ये एक स्क्वायर ट्रायंगल देख रहे हैं सिटिंग ऑन अ लाइन। सो इसी को जीस्टाल्ट कहते हैं। ये एक फॉर्म है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिगर्स है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डॉट्स है। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉट्स, ये एक डॉट्स का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे उनके रिलेशनशिप को बताया जा रहा है, डिटरमाइनिंग मेंटल एक्सपीरियंस यू हैव। आपने कहीं ना कहीं ज़रूर स्क्वायर देखा होगा, आपने कहीं ना कहीं ट्रायंगल देखा होगा। तो ये हमारा एक पास्ट एक्सपीरियंस है जो कि इन डॉट्स को स्क्वायर और ट्रायंगल बता रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है दैट इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डॉट्स एंड द रिलेशनशिप्स दैट डिटरमाइन द मेंटल एक्सपीरियंस यू हैव। पहले से कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, राइट? Thus, the point made by the Gestalt psychologists in their opposition to structuralism was that mental experience depends on the patterning. जो हमारा mental experience है ये किस पर डिपेंड करता है, पैटर्निंग में, ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। यहाँ पे एग्जाम्पल था डॉट्स वाला, ठीक है, एंड इज नॉट ड्यू टू सिंपली दी कंपाउंडिंग ऑफ एलिमेंट्स। सिर्फ एलिमेंट्स को देखने से हमारा माइंड नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, नॉट ड्यू सिंपली टू द कंपाउंडिंग ऑफ एलिमेंट्स, राइट? यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज किया। इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द जीस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, द माइंड इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द वे एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, सिंपल भाषा में अगर माइंड को समझना है तो आपको एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। इट इज़ वेरी इजी, जीस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी किसने फाउंड किया, कब फाउंड किया, किसके द्वारा फाउंड किया गया, इसका क्या थॉट था, इन्होंने क्यों स्ट्रक्चरलिज्म को अपोज किया, और जीस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, इन अदर वर्ड्स भी। सो हमारा पहला स्कूल जो था दैट इज़ स्ट्रक्चरलिज्म एंड जो दूसरा स्कूल था जीस्टाल्ट साइकोलॉजी, दोनों ओवर हो चुकी है। द नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म, ऑलराइट, फंक्शनलिज्म, दिस इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक, बहुत ही ईजी स्कूल है। फंक्शनलिस्ट, यहाँ पे फंक्शनलिज्म को बताया गया है कि फंक्शनलिज्म है क्या। सो बेसिकली ये बताता है, एज द नेम सजेस्ट, these early psychologists studied the functions of mind and behavior। यहाँ पे ये स्टडी करते थे कि माइंड और बिहेवियर कैसे फंक्शन करता है। और यहाँ पे फंक्शनलिस्ट कौन थे? जॉन डुवी, जेम्स आर एंजल, हार्वे कार। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो
ये तीनों थे। एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो इन्होंने प्रपोज किया था दैट साइकोलॉजी शुड स्टडी व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू, कि माइंड एंड बिहेवियर करता क्या है। इतने देर से हम लोगों ने क्या देखा था कि व्हाट माइंड, नेचर क्या है माइंड का, एंड देन द सेकेंड इज कि माइंड हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को जब देखता है, कोई पैटर्न फॉलो होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, देन दैट इज़ दी जीसाल्ट। ये पढ़ा हमने फॉर्म एंड कॉन्फ़िगरेशन। बट यहाँ फंक्शनलिज्म आ गया कि माइंड एंड बिहेवियर करता क्या है, राइट। स्पेसिफिकली दे वर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट दैट माइंड एंड बिहेवियर आर अडेप्टिव। ये क्या है, अडेप्टिव है, ऑलराइट। दे अनेबल एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट टू अ चेंजिंग एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट देमसेल्व्स टू द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ माइंड। कि हमारा माइंड एंड बिहेवियर अडेप्टिव होता है, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। द फंक्शनलिस्ट डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द वेज इन वाइल लर्निंग, विच मतलब लर्निंग उन्होंने सीखा, किया, स्टडी की इस पे एक चैप्टर है हमारा मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशन, जो लोगों को और साथ ही साथ एनिमल्स को भी हेल्प करता है टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट्स। जैसे अगर हम कहीं हैं और कहीं शिफ्ट होते हैं तो भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, राइट। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो एंड इफ़ यू गो टू साउथ इंडिया, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, सो वी अडेप्ट कर लेते हैं, देयर माइंड की थिंकिंग, बिहेवियर हमारा कुछ चेंज, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। दैट इज़ द बेसिक थिंग। अगर in brief, as the name of the school implies, these early psychologists studied the functions of mind and behavior. The next is behaviorism. Behavior आ गया। इतने देर से हम लोग सिर्फ माइंड के बारे में पढ़ रहे थे, what is mind, how it functions, what its nature. Now here is an entry of behaviorism. Okay, now behaviorism, this school of psychology originated with the John B. Watson. यहाँ पे बिहेवियरिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट था, तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था, विथ जॉन बी वॉटसन, जो कि फॉर मेनी ईयर्स उन्होंने एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में स्टडी किया। एंड वॉटसन रिजेक्टेड माइंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया कि माइंड एज अ साइकोलॉजी का ये सब्जेक्ट है ही नहीं, राइट। एंड इंस्टेड उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये किसकी स्टडी होनी चाहिए, बिहेवियर की होनी चाहिए, जो ऑब्जर्वेबल हो। साइकोलॉजी का मतलब है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर में ऐसी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जो ऑब्जर्वेबल हो। ऑब्जर्वेबल मतलब जिसे ऑब्जर्व किया जा सकेगा, और पोटेंशियली ऑब्जर्वेबल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, जिसे ऑब्जर्व किया जा सकेगा, राइट, नॉट द इंटरनल माइंड, ठीक है। In addition to its focus on behavior as the proper subject matter of the psychology, उन्होंने in addition to its focus कि हम लोग behavior के साथ साथ कुछ important characteristics पे भी focus करेंगे, and those three characteristics are as follows. One, as the emphasis on conditioned responses, right? जो हम लोग response करते हैं, conditioned responses as the elements or building blocks of behavior. जो जैसे कि एम्फोसाइज ऑन कंडीशन रिस्पॉन्सेस जो होती हैं, ये चैप्टर 2 में है, दैट इज़ अटेंशन, उसमें बताया गया है। बिहेवियरिज्म इन फैक्ट वॉज समवट लाइक द स्ट्रक्चरलिज्म, ये कुछ स्ट्रक्चरलिज्म की तरह है। इट रिजेक्टेड बिकॉज इट मेंटेन दैट कम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर कंपाउंड्स ऑफ मोर एलिमेंट्री वंस। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और इसमें बहुत एलिमेंट्री वंस नहीं है। Its elements, however, were conditioned responses rather than sensation. यहाँ पे जो responses हैं वो conditioned हैं rather than sensation, images और emotion. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो structuralism में था ना कि एक particular conditioned यहाँ पे नहीं थी। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था कि पर्टिकुलर सेंसेशन, इमेजेस एंड इमोशन पे स्टडी करना था, नेचर ऑफ माइंड था। बट यहाँ पे बिहेवियर की वजह से एंट्री यहाँ पे बिहेवियर की हो गई, तो इस एलिमेंट्स में कंडीशन रिस्पॉन्सेस को ज़्यादा फोकस में लाया गया है।
ठीक है, वॉटसन ने ये आर्ग्यू किया कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज मेड अप ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्सेस। यही तो बता रहा है कि वॉटसन ने आर्ग्यू किया कि जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर है वो एक ऑलमोस्ट मतलब बना ही है, वो कंडीशन रिस्पॉन्सेस से ही बना है। इट्स नॉट अबाउट ओनली द सेंसेशन। स्ट्रक्चरलिज्म में बिहेवियर का कोई रोल नहीं था, वहाँ पे सिर्फ माइंड का था कि हम सेंसेस के थ्रू हमारा माइंड वर्क करता है। बट यहाँ वॉटसन ने आर्ग्यू किया कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गया कि कंडीशन रिस्पॉन्सेस से ही हमारा एलिमेंट है, और पहला चीज़ में यही है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एनिमल बिहेवियर इज मेड अप ऑफ एंटायरली कंडीशन रिस्पॉन्सेस। सेकेंड जो है, closely related to characteristics of behaviorism was an emphasis on learned rather than unlearned behavior। यहाँ पे सेकंड जो emphasis था, जो characteristic था, वो related था learned पे rather than unlearned behavior। जो सीखते थे वही हमारे behavior में है। It denied the existence of inborn और innate behavioral tendencies। कोई पैदाइशी या फिर कोई इन्फेंट है, वो बॉर्न होते ही बिहेवियर के साथ नहीं होता। दे हैव बीन कंडीशनड दैट वे, दे हैव टू, इनको सिखाया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे लर्नड का rather than unlearned, राइट। अ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म वाज इट्स फोकस ऑन एनिमल बिहेवियर। पहला था कि कंडीशन रिस्पॉन्सेस, सेकेंड लर्निंग के थ्रू, एंड द थर्ड इज बिहेवियर वॉज फोकस ऑन एनिमल बिहेवियर। यहाँ पे एनिमल बिहेवियर को फोकस में रखा गया। Watson held that there were no essential differences between human and animal behavior, and what we can learn much about our own behavior from a study of what animals do। उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि देर कोई इसेंशियल डिफरेंस नहीं है कि कैसे एनिमल बिहेव करता है, कैसे ह्यूमन बिहेव करता है। वॉट वी कैन लर्न मच अबाउट, अगर हमें बिहेवियर के बारे में, खुद के बिहेवियर के बारे में ज़्यादा जानना है, वी वॉन्ट टू नो मोर फ्रॉम द स्टडी ऑफ वॉट एनिमल्स डू। अगर हम लोग ये स्टडी कर लेंगे एनिमल्स क्या करते हैं, वी विल बी मोर इजली टू लर्न वॉट ह्यूमन्स बिहेवियर्स आर, वॉट आर द ह्यूमन्स बिहेवियर। सो दिस इज द एंड ऑफ बिहेवियरिज्म। सिंपल है, सभी स्कूल्स में आपको ये बताना है किसने स्टार्ट किया, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, डेट, नॉट डेट, ईयर, एंड हु वर द साइकोलॉजिस्ट जिनका ये स्कूल ऑफ थॉट आया, और किसने किस स्कूल ऑफ थॉट को क्रिटिसाइज किया, एंड व्हाट दे एडेड एक्स्ट्रा इन इट, एंड यू नीड टू एक्सप्लेन इट। एंड बिहेवियरिज्म इज़ वेरी इजी। उन्होंने क्या बताया, किसको अपोज किया, अपोज नहीं किया, यहाँ पे क्वाइट सिमिलर करके बताया और रिजेक्ट भी किया उन्होंने। एंड इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज साइको एनालिसिस, ऑलराइट, एंड देन विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट इज next is modern perspectives। Alright, so let's see psychoanalysis। So psychoanalysis, so strictly speaking, psychoanalysis is not a school of psychology, but it has had a great impact on the thinking and theorizing of many psychologists। ये बुक कह रही है by Morgan and King, Introduction to Psychology। ये इट्स नॉट अ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बट बहुत इसका इम्पैक्ट पड़ा है ऑन थिंकिंग एंड थियोराइजिंग ऑफ मैनी साइकोलॉजिस्ट। साइको एनालिसिस फाउंड किया था इन वियना, ऑस्ट्रिया, बाय द साइकेट्रिस्ट सिगमंड फ्रूड। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इनका नाम। एंड ये कौन थे, ये एक साइकेट्रिस्ट थे। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस between psychologist and psychiatrist। In any other video I will definitely tell you the difference, but let's focus here। So psychoanalysis को किसने फाउंड किया था, सिगमंड फ्रूड ने। वो कौन थे, साइकेट्रिस्ट थे। कहाँ फाउंड हुआ, इन वियना, ऑस्ट्रिया। इन द कोर्स ऑफ हिज प्रैक्टिस विद न्यूरोटिक पेशेंट, ये एक न्यूरोटिक पेशेंट के साथ वर्क कर रहे थे। फ्रूड ने डेवलप किया अ थ्योरी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड विच सेड दैट मच ऑफ व्हाट वी डू एंड थिंक। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की अराउंड
behavior and mind, which said that much of what we do, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, जो हमारे अर्जेस होते हैं, ड्राइव्स होते हैं, जो हम अर्जेस यानी बहुत ही अर्जेस मतलब अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, लाइक जो हमारा मन कहता है करने का, जो हमारा जहाँ हमारा एक बिहेवियर कैसे होता है। अगर आपका आइसक्रीम खाने का मन है, सो व्हाट यू थिंक, यू अर्ज एन अर्ज टू ईट एन आइसक्रीम, तो आप वहाँ जाते हो, यू गो टू शॉप एंड यू ईट इट। दैट इज़ व्हाट द माइंड सोचा कि यू नीड टू, आई वांट आइसक्रीम, एंड यू गो एंड तुम खा लिया आइसक्रीम। दैट इज़ योर बिहेवियर कि तुम गए, यू हैव ईटन इट, विच सीक एक्सप्रेशन इन बिहेवियर एंड थॉट, जो आपको दिख जाता है। A crucial point about these urges and drives, according to psychoanalytic theory, is that they are hidden from the awareness of the individual. So यहाँ पे ये कह रहा है unconscious के बारे में बताया जा रहा है। Okay? एक crucial point ये होता है कि according to psychoanalytic theory, they are hidden from the awareness of individual. They are, in other words, unconsciousness की बात यहाँ पे की जा रही है। It is the expression of the unconscious drives which shows up in behavior. एक unconscious drive होता है जो हमारे behavior और thought में दिख जाता है। Like अगर आप गुस्सा हो तो आप, if you are angry, आपके behavior से दिखेगा, like you are not doing anything, आप चीज़ों पटक रहे हो, ये आपके behavior में दिखा, आपके thought में दिखा कि आप बहुत ही angrily decisions, furiously decisions ले रहे हो। The term unconscious motivation thus describe the key idea of psychoanalysis. Very important, ये बहुत important है। The term unconscious motivation ये describe करता है the key idea of psychoanalysis. फ्रीड ने elaborate किया है this basic theme of unconscious motivation को, the result being the theory which is described in detail में एक chapter है इस पे, that is we'll study later. सो दैट इज़ वेरी ईजी। साइको एनालिसिस में क्या था कि साइको एनालिसिस को किसने फाउंड किया, कब फाउंड किया, किसके द्वारा फाउंड किया गया, एंड ये थ्योरी निकली कहाँ से, राइट। एंड इसमें क्या बताया जाता है, यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताया जाता है, मोटिवेशन के बारे में बताया जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हमारा ये सारा हो गया है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की एक हिस्ट्री दी गई है। दीज आर दी साइकोलॉजिस्ट जेम्स वुडेंट, ओके, जेम्स वुडेंट, टिटेंशनर, वर्टमर, कॉफका, वाटसन, कार, एंजल, जुवी एंड कोहलर, ओके। देन हमारा सारे पहला था स्ट्रक्चरलिज्म, कब कहाँ किसने किया, Gestalt psychology, functionalism, the next is behaviorism, psychoanalysis, and the modern perspectives is remaining, so we'll see that also.